Hello students, I am Mr. Ratian Das. I invite you again to my YouTube channel RK English Grammar. Students, in the first part of voice change, I have already taught you, and in that part, I have taught you about how to make voice change from active voice to passive voice, from passive voice to active voice, and I have given you one role, गोटे role भी मध्य देइथिली जे changing from active voice to passive voice. Active voice to passive voice जेतेले हमें चेंज करू सेतेबेले how many verbs we use, and जदि active voice रे there is one verb we will use two verbs. If there is two verbs in active voice we have to use three verbs. If there is three verbs then we have to use four verbs in passive voice. These are the rules I have given you and how to make voice change. Now I am giving you in the second part जे types of voice change. Types of voice change केते प्रकार voice change अछि. Today I am giving you some 6 types. Then there are other sums. आउ किछि मध्ये अछि. Number 1, voice change of declarative sentences with one object. Number 2, voice change of declarative sentences with double objects when having two objects. With two objects or having two objects. Number 3, voice change of imperative sentences with single object, that means one object. Voice change of imperative sentences with double object. Then 5, voice change of interrogative sentences with single object or one object. And 6, voice change of interrogative sentences with double objects or two objects. Today I am telling you about the first one, the declarative sentence. Voice change of declarative sentence having or with single object and double object. Today I am telling you, I am explaining in details. Look here, the declarative sentence क्या हुआ जाए? Usually our sentence is three types. There are three types of sentence. One is simple sentence, number 2 compound sentence, number 3 complex sentence. A simple sentence रे हाय चारिटी major sentence जथा declarative sentence, imperative negative interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Exclamatory sentence, again I repeat, declarative sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 exclamatory sentence. A declarative sentence divided into two. One declarative sentence, gote declarative sentence, here I am writing one declarative sentence again divided into two, A and B. One is called affirmative sentence, one is called affirmative sentence. In short आम्ही ह्याकू कहू अति संक्षिप्त रे कहू पॉजिटिव सेंटेंस को and पॉजिटिव सेंटेंस को. and number B नेगेटिव सेंटेंस, नास्ति सूचक वाक्य, अस्ति सूचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस और नास्ति सूचक वाक्य. in short when we teach the grammar English grammar in short we write positive sentence and negative sentence. এই जो declared sentence with one object এই কথাটা এবে মু एक्सप्लेन करछि तम मान को देखो याको किमति वॉइस चेंज करा जाय. Suppose I write one example, the teacher, the man bought a pen. A man bought a pen. Look at the sentence. Here is the sentence re there is one subject. Subject is one, there is one verb and the verb is in two form and there is object. A verb जो two form is gotiye verb, there is one verb in the sentence, so it is both. It is finite verb because it identifies the tense and it is main verb because it is the root verb, that is by ro past form hochi bought. One object देखिलो, one object having one object, single object. जेतला हम passive voice करा, so we find that it is active sentence by active voice. In short it is active sentence by active voice रे अछि. এই रूल्स अनुसार आमे टू वर्स नबा ए भले एग्जांपल मध्ये मु अतीत रे कहिछि. एतरे टू वर्स नले passive voice रे आमे कोन करिबु ना ऑब्जेक्ट अछि a pen, we take the object to the subject. A pen past is simple अछि was, जेतु एटी फाइनाइट वर्ब ता के हबो ना फाइनाइट वर्ब एटी is did and main verb is by, did plus by equal to bought. Then a pen was bought by the man. एटा होची अति सिंपल सेंटेंस एवं एटा ते सिंपल सेंटेंस रे एवं एटी सिंगल ऑब्जेक्ट अछि. मु एटा को तुमको एक्सप्लेन करी.
एबे सिंगल ऑब्जेक्ट वॉइस चेंज ता तुमको सहज हो जबती जेतले मु डबल ऑब्जेक्ट ता पढिबा आरंभ करछि नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द sentences that would be changed to PC form having two objects or double object. Types number 2. I write here types number 2. Types number voice change of declared sentence with two objects or double objects. Number 2. Example आमी केते बेले गुटे सेंटेंस रो डबल ऑब्जेक्ट देखि परिबा केते बेले गुटे सेंटेंस रो डबल ऑब्जेक्ट देखि परिबा मींस ए सेंटेंस रे गुटे पैटर्न अछि तुमको बुझिबा पड़िबो फास्ट मु गुटे जिंस लेखुछि जे सेंटेंस इक्वल टू जदि सब्जेक्ट अछि प्लस वर्ब गुटे अछि बा अधिक अछि वन वर्ब मे बी मोर देन वन वर्ब्स प्लस जदि गुटे ऑब्जेक्ट अछि दैट मस्ट बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अदरवाइज सेंटेंस भूली जो सपोज मु आई राइट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्तमान ए सेंटेंस दिस सेंटेंस इज करेक्ट वन another sentence I write suppose subject equal sentence equal to subject plus verbs one or more than one plus indirect object अछि but there is no direct object जदि direct object नहीं this sentence is incorrect I will explain it number 3 suppose subject a sentence having subject plus verbs plus both indirect object plus direct object dita object अछि this sentence is correct this sentence is correct ए सेंटेंस ता करेक्ट एबे ए सेंटेंस को हमें लिखि परिबा जदि सेंटेंस रे लिखि परिबा सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस जदि हमें आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आनिबा ताहले प्लस एटी पिला माने टू प्रीपोजिशन रखिया को पड़िबो टू प्रीपोजिशन रखिया को पड़िबो तापरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पछे रहइबो ताहले प्रीपोजिशन टू नबा को पड़िबो एबे तुमको एटा को मु बुझौछि देखा फॉर एग्जांपल मु कहिली First one day, the man told me, here is the subject, this is verb 2, this is me indirect object. आम indirect object जानिबा किंती ना indirect object सेतिकी बेले जानिबा जेतेले मेन verb थिबो जे मेन verb थिबो ताकू जदि प्रश्न आमे होम पचारिबा जो आंसर ता आसीबो सेई आंसर हला indirect object जदि मेन verb को आमे प्रश्न पचारिबा व्हाट कोन प्रश्न पचारिबा जो उत्तर आसीबो जो आंसर ता आसीबो सेई आंसर ता हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ थे रिपीट करछि जेतेले सेंटेंस रो मेन verb को क्वेश्चन करिबा whom जो उत्तर आसीबो से हबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जदि आमे क्वेश्चन करिबा व्हाट ताले जो उत्तर आसीबो से हिजबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिजबो एबे हला सब्जेक्ट verb told man told मत कहले कहा कहले मते कहले एठी वाक्यटा इनकम्प्लीट हे जाउची एठी कोन कहले व्हाट कहले कोन अते दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एई दृष्टि रो एटा को ठीक बोली ग्रहण करबा नाही दिस टाइप नंबर 2 किंतु जदी रहिबो द मैन सपोज रहिला द मैन टोल्ड ए स्टोरी लोकटे गुटे गल्प कहले दिस वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लुक हियर दिस वन इज verb and this one is subject लोकटी स्टोरी टे कहला एठी एइटा होची स्टोरी टे कोन कहिले ना व्हाट कोन कहिले प्रश्न पचालु verb कोन कहिले ना गपटिए कहिले तेनु आसी गेला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तमन के मन रे प्रश्न थई पारे जे जदी एठी तो होम नाही ताले एक सेंटेंस ता किमते ठीक हबो पिला माने किछि एथिरे आश्चर्य बार नाही जेते बेले वाक्यटी जे कहूची स्पीकर जे एठी हियर आई एम स्पीकर सपोज तमे कहिला तमे स्पीकर जी स्पीकर से स्पीकर को ही लोकटी कहउचंती बोली बुझा पड़िबो सो जेते बेले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य नाही दैट मींस द स्पीकर हिमसेल्फ साको बुझा पड़े तेनु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट न रे पारे वर्तमान एई सेंटेंस रो कैटेगरी टा को हम लक्ष्य करिबा एथिरे केनो हिजिबो ना द मैन टोल्ड कहा को कहले मते कहले आमो कहले तमो कहले पिलांकु कहले the man told me a story this one is correct sentence here is the subject and this one is the verb this one indirect object this one is direct object a sentence को हमें rewrite कर परिबा the man told a story to me एबे जिबा यार वॉइस चेंज पैटर्न ता हमें
केमती कर परिबा एवं को पैटर्न से तुमको मागी थिबो आंसर मागी थिबो देखिबो से अनुसार देखिबो एक्टिव देथिबो पैसिव भी करिया पई कहबो पैसिव देथिबो एक्टिव करिया पड़िबो ताकू धरिबा पड़िबो जे को वर्ब टा वर्ब रो को ऑब्जेक्ट फॉर्म टा रखिछि मींस ऑब्जेक्ट टा कोन रखिछि एई एग्जांपल टा मु कर दोछि तुमको द मैन told me but told us हमको कहले a story so here is the direct object and this one is indirect object this one is verb to both finite verb and main verb finite verb is did plus main verb is tell then this one is the subject जदि एटा एक्टिव रे अछि हम ताको पैसिव रे करबा हमें दुई प्रकार वॉइस चेंज कर परबा we can take the direct object to the subject हमें direct object को subject जाको नहीं परिबा look at the passive voice रे in one form passive voice रे ताले a story one verb हमें two verb नहीं परिबा a story was जे तो past impulse अछि did verb auxiliary verb रो transfer हेजबो was primary auxiliary तो a story was थर्ड फॉर्म पुणी अगेन कहि सब बेले पैसिव फॉर्म रो मेन वर्ब ता थर्ड फॉर्म को ही जीवो ए स्टोरी तन गुटिए वर्ब हमको जो कहितली जे गुटिए हेल्पिंग वर्ब हमें एक्स्ट्रा नबा पड़ियो पैसिव वॉइस रे वन हेल्पिंग वर्ब हमको सहायता नबा पड़ियो तने स्टोरी वाज टोल्ड टू एट टू लागिला पछुक रही गला जेतु अस बाय द मेन वन फॉर्म वन वॉइस सपोज क्वेश्चन रे पैटर्न चेंज करी से एटा को रखिथिबो सब्जेक्ट को कि मागिथिबो से उनजाई देन अनदर फॉर्म विल बी डन दिस वन इज गुटे फॉर्म आ गुटे पैसिव फॉर्म रे हे परिबो आमी एटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओस्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई थिले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी थिले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जदी अस अछि आमी सब्जेक्ट को नेबा वी एवं यार फाइनाइट वर्ब हो कि ना we are told we were told it is direct object रहेला a story आउ टू लागिबो नाही a story by the men two types of voices सही गला अतएव जदी डबल ऑब्जेक्ट अछि जो वाक्य रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अछि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अछि आमी दी प्रकार वॉइस चेंज कर परिबा तुमको क्वेश्चन रे कोन मागी छी से जे देखिबो एमसीक्यू पैटर्न हो बा तुमको आंसर मागिया हो कि पैसेज करेक्शन देथिबो हो से दृष्टि तुम आगे सेंटेंस को देखिबो जज करिवो जे सेंटेंस रे कोन मागी छी आई राइट अनदर एग्जांपल सपोज मु एक एग्जांपल देली एठी एग्जांपल टा को तुम स्टडी करबा को पड़िबो एग्जांपल हैला मु कहली द cow was fed grass. Look at the sentence, students. Here is the subject, and there are two verbs. This one is finite verb, this one is main verb. एवं ई मेन verb थर्ड फॉर्म अछि एठी ग्रास अछि वस्तु अछि व्हाट कोन खुआ गला ना ग्रास खुआ गला एटा व्हाट रो उत्तर अछि एठी सेंटेंस को कोन लक्ष्य कल जानलो जे ए वाक्यटा निजे पैसिव फॉर्म रे अछि ए वाक्यर निजे पैसिव फॉर्म अछि जदि पैसिव फॉर्म अछि ताले ये भी गुटे सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट को आसी सब्जेक्ट जाकू ये हला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा को घास खुआई छि कहा खुआई छि गाय की खुआई छि एठी ग्रास अछि किंतु एठी देयर इज नो बाय एजेंट पैसिव वॉइस जो बाय एजेंट था जे या पूर्व में कहिलु बाय द मैन एठी बाय एजेंट नाही जदि बाय एजेंट नाही ताहालो को तुमको जदि एक्टिव मागी छि सपोज ताले तुमको एठी उठे बाय एजेंट नवा पड़िबो के ना केही नाही माने बाय मी केही नाही माने बाय मी जदि केही नाही दैट इज बाय मी ताले एठी नहीं जे परयो जे कोन प्रोनाउन एठी मी नहीं जो मु कहूची माने मु कहै छि ऑटोमेटिक ए एठी एक्टिव वॉइस रे चेंजेस हे जिवो कोन एक्टिव वॉइस रे चेंजेस हे जिवो एक्टिव वॉइस चेंजेस हे जिवो आई दीटा वर्ब अछि पैसिव फॉर्म रे गुटे वर्ब नबु फेड आई फेड द काउ grass or I fed grass to the cow. Look here, भाबुची एक गुटिए पैटर्न तुमको बुझेली वॉइस चेंज ऑफ डिक्लेयर्ड सेंटेंस विथ सिंगल ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट इट विल हेल्प यू लर्न इट करेक्टली एंड जदि वीडियो भल लागुची you share it, subscribe it and like it also this video
and you help to your friends, give it to your friends for better circulation of the knowledge. Thank you. God bless you.